Hello friends, welcome to Study Center. It is the second lecture for your chapter 1 of science from class 9 textbook, and in this video you are going to learn about the effect of temperature on the states of matter, on the matter, how the temperature affect, what changes happen and how does it affect on the states. And in the last video we've already studied what does matter, different type of matters and the state of matter, how the particles behave in the matter. If anyone of you have not watched the previous video, the link is already given in the description box, so please watch that video so that you will get the complete understanding of this chapter. You already know the properties of the three states, that are solid, liquid and gaseous. There's three states of matter. The properties of that matter, physical properties and chemical properties, we have already discussed in the last lecture, lecture 1. And here we are going to know that can matter change its state. क्या हम matter का state change कर सकते हैं? जैसे state क्या थे? Gaseous, solid, liquid, they are the states of matter. So now we are going to learn, we are going to know that whether this matter can also change its state. क्या हम solid को liquid में, liquid को gas में, gas को solid में convert कर सकते हैं? How they interconvert, that we are going to learn in this video. So yes, the answer is yes, we can change the state of matter because the states of matter are interconvertible. Interconvertible means we can convert the solid into liquid, liquid to gas, and like this, vice versa, we can convert the state of matter. Now, how it can be changed, that is most important thing. It can be changed in the two ways. Which are the two ways? First way is by changing the temperature. This is the first way. जब हम temperature change करेंगे, at that time, that is the one way that we can change the state of matter. And the second way is by the changing pressure. These are the two ways by that we can change the matter, state of matter. So in this video we will focus only on this temperature. यहाँ पे इस वीडियो में हम टेम्परेचर पे डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर की वजह से कैसे हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं और कैसे चेंज होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड स्टेट. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट की, कि सॉलिड स्टेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. In this video only, at the end we will discuss about gaseous state also and liquid state also. So on solid state basically क्या होता है, ये सारे state के लिए common है. On increasing temperature of solid, even on liquids and gaseous also, the kinetic energy of the particle increases. वो particle की energy क्या हो जाती है, increase हो जाती है. वो particles क्या है? The particles are those particles which is matter consist of. Matter क्या है? Matter के constituent particles यही particles ही होते हैं, जो tiny particles. मैंने आपको एक क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट के साथ एक एग्जांपल भी दिया था पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके साइज को एक्सप्लेन करने के लिए. और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर मींस वी आर सप्लाइंग हीट. हीट सप्लाई करने का मतलब है एक हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और वो हीट एनर्जी से क्या होगा, पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और वो उनकी अंदर जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. नाउ वी नो कि जो सारे पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं. दे आर बाइंड बाय द पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अबाउट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू आर गोइंग टू लर्न इन हायर स्टैंडर्ड्स. For now you just have to know that the force of attraction is there between the particles, and due to that force only, the particles are binded with each other and forming a shape or any type of liquid or particles, intermolecular forces. And between these particles the force become weak. Why it is becoming weak? Due to this vibration. इस vibration की वजह से जो force है वो weak हो रहा है. किसके बीच में? particles के बीच में. और जब वो उतना वीक हो जाएगा, यू नो दैट सॉलिड्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और वो धीरे धीरे लिक्विड और गैशियस में डिक्रीज होता जाता है. तो सॉलिड में इन सॉलिड द मॉलिक्यूलर फोर्स इज द हाईएस्ट, एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन इट विल become weak. And what happen, that particles will not be no more bound, that much forces is not there now, and the particles will little bit, they will freely start moving, they will start moving freely, not completely free, but somehow their force is becoming weak. That's why they are moving freely with some larger amount before previous thing. Now what is this, सॉलिड क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना हो गया, जितना लिक्विड में होता है. सो सॉलिड नाउ इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में,
और वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन. उसको बोलते हैं फ्यूजन. फ्यूजन इज द प्रोसेस of converting the state of matter from solid to liquid. That process is called fusion. Okay. अभी तक हमने क्या किया? एक सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड हमने कोई भी क्रिस्टल ले लिया, उसमें टेम्परेचर मीन्स हीट सप्लाई की, एनर्जी सप्लाई की, पार्टिकल सडनली मूव करने लगे. अब स्टार्टिंग में टेम्परेचर अप्लाई करते से ही वो पार्टिकल मूव तो नहीं करने लगे होंगे. सो व्हाट इज़ हैपनिंग? एक टेम्परेचर स्टार्ट करने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पार्टिकल्स एक दूसरे के फोर्स उनके वीक हुए होंगे. उसके बाद they will start moving freely. So at that particular temperature, उस particular temperature पे, जिस temperature पे वो solid से liquid में convert हो गया, means उसके force weak हो गए और particles free हो गए वहाँ पे. At that temperature the solid melts to become a liquid. उस temperature को हम क्या बोलते हैं? उस temperature को बोलते हैं melting point. That temperature is called melting point. उस solid का melting point होता है जिस temperature point पे वो solid converts to liquid. Okay. And at the atmospheric pressure is basically on earth the pressure which is present in the atmosphere, that much amount of pressure. We can produce a larger amount of pressure in experimental use also, but here we are talking about the atmospheric pressure. In the normal atmosphere we are performing this process. और basically the melting point, more the melting point, more the force of attraction. अब यहाँ पे melting point हमें क्या बताता है? different solids का different melting point होगा, और जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है किसी का भी उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स उतना ज़्यादा वो क्रिस्टल या फिर वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग है. उसमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. सो मीन्स more the melting point, more the strength, more the strong that molecule or more the strong that particular crystal or solid matter is. Now the basic example we know that melting point of ice is 273.16 Kelvin. Kelvin is a unit of temperature and it is basically the SI unit of temperature. ये Kelvin क्या है? टेम्परेचर की SI यूनिट है. SI यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है. SI यूनिट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, उस यूनिट को हम SI यूनिट बोलते हैं. और जब हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0 डिग्री सेल्सियस. सो इन द फर्दर वीडियोज़ आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट द केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इंटू Kelvin. This temperature conversion I will make a video, separate video for that, and then you will understand it better. Now second thing is latent heat for fusion. अब ये latent heat of fusion क्या है? जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, अगर आइस सपोज आइस लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और वो सॉलिड है. जब हम उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. अब आप एक प्लेट में आइस लो, वहाँ पे एक हीट सप्लाई करो, वो हीट कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस में. अब आइस का जो पहले टेम्परेचर था वो सेम टेम्परेचर वाटर का होगा, तो फिर हीट कहाँ गई? वो हीट कहाँ गई जो हमने सप्लाई की थी? क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं. अगर हीट हमने सप्लाई की तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था ना. वाई इट नॉट चेंज? यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. व्हाट डज इट मीन? कि जो हमारी जो एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस देखा अभी हमने आइस का, वाटर का. तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है यहाँ पे. तो वो हीट जो हमने सप्लाई की थी वो कहाँ पे यूज़ हुई? वो हीट यूज़ हुई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में. मतलब कन्वर्जन ऑफ स्टेट में स्टेट कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा. और उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग the solid state into liquid state. Clear? I hope it is clear. If still you have any doubt, please put it in comment box. I will make your doubts clear. Now coming to the liquid state. Liquid state के लिए हम same thing पढ़ेंगे. एक liquid है, हमने उसमें temperature increase किया, particles will start moving with a very high speed so that the force of attraction between the particles will get broken. और वो broken होने की वजह से what will do? The liquid will be converted into गैशियस. तो जो लिक्विड स्टेट था किसी भी मैटर का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
गैशियस स्टेट में, वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोलते थे? फ्यूजन. और यहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में. सो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन. वेपराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो, latent heat of vaporization is the same definition which has the latent heat of fusion. उसमें हम क्या लिखते थे कि solid state 1 kg solid को liquid में convert करने के लिए जो heat energy चाहिए उसको हम बोलते हैं latent heat of fusion. And here the energy required to convert the 1 kg of liquid into gaseous state, that is called latent heat of vaporization. Okay, clear? अब हम example लेते हैं. Particle in steam have more energy than water एट द सेम टेम्परेचर. हमारे पास वाटर है वो लिक्विड स्टेट है, स्टीम है वो गैशियस स्टेट में है. और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्टीम की जो एनर्जी है वो वाटर से ज़्यादा है. कैसे ज़्यादा हो गई? क्योंकि स्टीम गैशियस स्टेट में है. वो कैसे बना? जब हमने वाटर मतलब लिक्विड स्टेट को एनर्जी सप्लाई की, वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ. मीन्स इट हैज़ गेन्ड सम एनर्जी, इट हैज़ गेन्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड ड्यू टू दैट इट हैज़ कन्वर्टेड द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. क्लियर? वाटर को एनर्जी मिली, उसने कन्वर्ट किया स्टीम में. दैट्स वाई स्टीम के पास एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. दैट इज़ अ सिंपल थिंग दैट इज़ रिटन हियर कि स्टीम की एनर्जी वाटर से ज़्यादा होती है. दैट्स वाई एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बर्न होता है कोई भी तरह का, तो स्टीम बाथ सुना होगा. तो स्टीम बाथ और हम जो बॉइलिंग वाटर ले लें, सबसे ज़्यादा जो इंजरी होगी वो किससे होगी? स्टीम बाथ से. बिकॉज स्टीम इज़ मोर hot, more energy, it has more energy. That's why steam will affect more on his body. That's why from here we can prove that the steam is more hot or have more energy than the liquid water. Now for gas we have simple process sublimation. Sublimation क्या होता है? Conversion of solid state directly into the gaseous state. अभी तक हमने क्या पढ़ा? solid liquid में convert होगा, liquid gas में convert होगा. liquid को हम gas में convert कर सकते हैं ना heat of vaporization देके. लेकिन अब ये हमारा एक डिफरेंट प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. एंड सब्लिमेशन इज व्हाट? इट इज सिंपली द सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गेट कन्वर्ट्स इनटू द गैशियस स्टेट. जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट वहाँ पे आएगा ही नहीं. इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट. सो वी हैव सम different type of compounds there in their nature which directly can be converted from the solid state to gaseous state. One of the example is camphor. कैम्फर एक सिंपल एग्जाम्पल है. अपने कपूर घर में आप यूज़ करते हो कि उसको आप जब बर्न करते हो, बर्न करने से पहले वो किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में. एंड आफ्टर बर्निंग इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैशियस स्टेट. ओके, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस सब्लिमेशन. एंड हमने यहाँ पे जो हमारा टोटल फाइनल में क्या पढ़ाई की आज? सॉलिड को हीट कन्वर्ट करेगी. सॉलिड वी विल प्रोवाइड द हीट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. एंड इफ वी विल गिव हीट टू लिक्विड, it will be converted into gas. Again, that is a reversible process. When you will cool the gas, it will be converted into liquid, and if you will cool the liquid, it will be converted into the solid. So it is the basic interconversion of the states of matter from solid to liquid, liquid to gas, and again vice versa. So it is the basic. That is all because of the effect of temperature. यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? हमने सिर्फ टेम्परेचर को यूज़ करके ये सारे हमने इंटरकन्वर्जन किए हैं. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, कि हाउ प्रेशर इफेक्ट ऑन द स्टेट्स एंड व्हाट चेंजेस इट प्रोवाइड्स टू अस एंड व्हाट स्टेट्स चेंजेस ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप क्लियर करो, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालो और मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी. एंड प्लीज़ इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्लियरली, इफ़ यू like the video, please share it so that in this crisis time so many students maybe could learn for this. And especially I'm making this video for those students only, those who are not able to learn in this crisis times.